So the question is, why do we perform any modeling and simulation? इसका क्या आंसर होना चाहिए? What do you think? Simulation हम लोग क्यों करते हैं? What could be the answer of this? Modeling करके, simulation करके, या फिर computational machine engineering करके, what is the reason that we do it? Analysis. That means we avoid trial and error. The answer is we avoid the trial and error based experiments. For an example, let us assume that you need to find a material which can be used as turbine blades. Okay, रोल्स रॉयस एक कंपनी है, इसने एक अलॉय बनाया है, रोल्स रॉयस 1000, which is basically a nickel-based super alloy, which is used in turbine blades. So, इसका exactly what composition should be there to make it withstand very high temperature and mechanical impact. तो इसको बनाने से पहले इट्स नॉट दैट कि रोल्स रॉयस ने सारा एक्सपेरिमेंट करके एलॉय बना के फिर टेस्ट किया है. दे मस्ट हैव गॉन थ्रू अ सेट ऑफ सिमुलेशंस. उसके बाद few out of few possibilities they have chosen one. So this is the reason that we avoid the trial and error based experiments. और इससे क्या होता है, which are very much expensive in practically अगर देखो expensive, they are not economical in terms of time and in terms of money. That is why we perform such simulations. Okay. Now, in today's world, the simulations are multi-dimensional, or you call it as a multi-scale simulation. Multi-scale simulation का मतलब है we need to simulate each and every aspect. कोई एक particular aspect simulate कर दिया उसे नहीं चलेगा. We need to perform, we need to know the band structure or the electronic structure, because all things are related to each other. Electronic structure या फिर band structure. फिर you need to understand the grain growth, grain evolution,
evolution, and corresponding to grade evolution, there are certain things like formation of defects, so we need to also analyze it in terms of stress, stability. How much stress it can withstand in which condition, and also the phase formation and their stability. So ये इतने सारे जो एस्पेक्ट्स हैं ये किसी एक कंप्यूटेशनल प्रोग्राम को नहीं होता है। इस तरह we can't have all the information by having a single program. इसके लिए अलग अलग different programs, different tools हम लोग यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यूज DFT, थोड़ा इंट्रोडक्शन तुम लोग को मिल चुका है. डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी, इट इज बेसिकली a quantum based tool. It takes care of the first aspect, electronic and band structure calculation. सेकेंड वाला जो है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, that is molecular dynamics simulation, MD simulation. Second aspect, stress withstanding ability, हम लोग यूज करेंगे finite element modeling or any modeling which is based upon continuum mechanics. Stress strain, जितने भी concepts हैं, they are also called continuum mechanics. This will take care of this one. And phase formation and stability, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे CalcMath. इसके अलावा बहुत सारे हैं, but these are the main techniques. ठीक है, ये techniques हैं. अभी हम लोग सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो corresponding to these techniques we have different softwares. These are techniques, computational tools. These are computational techniques. Now what about the different tools that we adopt? तो इसके लिए टूल्स तो नॉर्मली यूज किया जाता है स्मॉल का. इसके लिए डिस्कशन लैम्प्स, इसके लिए एबाकस, थर्मोकैल और पैनमैट. So today we will focus on the second one, that is a molecular dynamic simulation. So we will start with an example. Each example शुरू में डिस्कस किया था टर्बाइन ब्लेड्स, और उसके लिए हम लोग निकल बेस्ड सुपर अलॉय यूज करते हैं. ठीक है, अच्छा सुपर अलॉय, इसकी जो स्पेशली दिस निकल बेस्ड सुपर अलॉय, इसका जो मैक्रो स्ट्रक्चर है, इट इज बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ मेनली टू
phases. One is the gamma phase, the FCC matrix, nickel based FCC nickel matrix. And we strengthen it by precipitation hardening. We have a second phase which is called the precipitates, and it is mainly due to addition of mainly aluminium and titanium. तो especially ये वाला जो phase है ये है Ni3Al और Ti. ये वाला phase है. It forms at the precipitates. Now यहाँ पर different aspects है. हम लोग basically आज computational के बारे में discuss करेंगे नहीं, but still I would like to discuss some physical metallurgy part also. तो इसका मतलब क्या है? You have different grains. निकल के और इसके ऊपर ये प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग हुआ है एंड दे आर फॉर्म्ड यहाँ पे हैप्पी ग्रीन बाउंड्रीज भी कुछ बना है और यहाँ पे Come on. Now it can happen that along a certain grain boundary you have a continuous precipitate. It's not precipitate accelerated. Continuously अगर precipitate बनता है कंटिन्यूस प्रेसिपिटेट बनता है. दैट मीन्स कि क्या होगा? द मेटेरियल्स विल बिकम हार्डर. हार्डर होते होते इट विल बिकम, इसका ब्रिटलनेस बढ़ जाएगा. एंड तो इनिशियली व्हाट वाज बेनिफिशियल, व्हेन इट बिकम्स एक्सेसिव, then it leads to a high brittleness or ultimately it will fail. So we don't want that. Now what is the computational material scientist will do? It will take certain case studies और उसका analysis करेगा. Not only grain evolution and defects but also फेज फॉर्मेशन, कौन सा फेज फॉर्म हो रहा है, किस कंडीशन में फॉर्म हो रहा है, एंड द स्ट्रेस स्टेबिलिटी. अगर फेज इज फॉर्मिंग, व्हाट इम्पैक्ट इट कैन हैव इफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज जनरेटेड एट हाई टेम्परेचर. तो ऑल दिस एस्पेक्ट्स द मशीन साइंटिस्ट हैज टू. So we will first start with this one. So for example, so the microstructural evolution, looks at control, it forms grains. You need to have a certain idea. Grains होते हैं, grain boundaries होते हैं, और defects तो होते ही हैं, लेकिन grain size is an important aspect, because from grain size we can have the idea of our strength of the grain. The stress is inversely proportional to 1 by root T, where T is the grain size. कौन सा इक्वेशन है? So this is the basic idea. Molecular dynamics.
Now let us come to the basic idea of an ME solution. तो यहाँ तक क्लियर है सब कुछ. Now the technique which is used in molecular dynamic simulation, जैसे मैंने कहा था, it is LAMMPS. ठीक, so LAMMPS. LAMMPS का फुल फॉर्म है LA stands for large area atomic molecular parallel simulation. और एक वर्ड शायद है, massively parallel simulation. Large area, atomic or molecular, massively parallel simulation. So यहाँ पे बेसिकली जो होता है, हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, वी यूज द न्यूटन्स लॉ. एक तरफ से देखा जाए, ये लॉ हम लोग सब जानते हो. न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स एंड एक्सेलरेशन. तो इससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वी ट्राई टू एनालाइज द ट्रैजेक्टरी ऑफ द इट इज एज सिंपल एज दैट. इसका बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, न्यूटन्स सेकंड लॉ. हम लोग जो MI stands for mass of individual atoms. Now the force that is being applied, अगर हम किसी एटॉमिक सिस्टम में फोर्स अप्लाई करते हैं, तो देयर हैज टू बी सम पोटेंशियल. यहाँ पे सारा खेल potential. So there are certain set of potentials applicable in LAMMPS based upon the composition or the condition of the system or what we are actually trying to find. Basically, चार type के potentials होते हैं. First one is EM. MEAM. Turns off or reacts. FF. EAM का फुल फॉर्म है एम्बेडेड एटॉमिक मॉडल. एम्बेडेड एटॉमिक मॉडल. MEM का मतलब है, only difference between EAM and MEM is this M, ये वाला. M is usually modified EAM.
टर्सो पोटेंशियल एक IBM के साइंटिस्ट के ऊपर है, सम टर्सो ऑफ IBM। और रिएक्ट्स इज वेरी सिंपल, ये रिएक्टिव फोर्स फील्ड। बाय द वे लैम्प्स इज फ्री। तुम लोग, मैं चाहूँगा कि आफ्टर दिस क्लास, क्योंकि प्रैक्टिकल डिस्कस करवाना है, तुम लोग लैम्प्स को डाउनलोड कर लेना अपने PC में, मोबाइल में तो होगा ना, PC में डाउनलोड कर लेना। और उसका बेसिकली देयर इज एन इनपुट फाइल रहता है। और इसका एडवांटेज है कि यू कैन राइट द इनपुट फाइल इन एनी टेक्स्ट एडिटर, देयर इज नो पर्टिकुलर लैंग्वेज टू इट। लैंग्वेज है लेकिन किसी भी टेक्स्ट एडिटर में जाकर तुम लिख सकते हो एंड यू विल गेट द आउटपुट। बट इन द केस ऑफ लैम्प्स द इम्पोर्टेंट, सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, और इसका जो मैं अगर बोलूँ, अच्छा लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन व्हाट आर दीस। सो द EM इज एम्बेडेड एटॉमिक बॉम्ब। अच्छा, एम्बेडेड वर्ड क्यों आ रहा है? एम्बेडेड वर्ड आ रहा है बिकॉज वी आर कंसिडरिंग हियर लोकल इलेक्ट्रॉनिक configuration. Local electronic density electronic configuration जो कि बोल सकते हैं सिग्मा I, इसलिए इसको एम्बेडेड बोल रहे हैं। मतलब you have a certain area, you look at a certain area, you have atoms like this, मान लो, so if you just focus on this area, this is the main atom, or which correspond to gamma, and these are the precipitates, gamma dash. तो अब एटम है, मतलब there has to be some, you know that a metal is basically a sea of electron है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है ना सारे, सी इलेक्ट्रॉन्स में देखने में शायद ऐसा नहीं है, लेकिन टू मेक यू अंडरस्टैंड आई एम डूइंग। सो these are basically the sea of electrons. तो ये it is different from if there was no gamma prime phase. तो जैसे हम लोग gamma prime phase लेके precipitate फॉर्म करते हैं, ऑटोमेटिकली द कॉन्फ़िगरेशन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाता है, जो सिग्मा आई है वो चेंज हो जाता है।
call it as electron density. Configuration होता है हमने basically density के बारे में बात करें. It changes. ठीक है. अच्छा, another thing is that we also use a quantity called of Ij paired. So one is the shear electron, the electronic density, local electronic density, and दूसरा है sigma I think. सेकेंड वाला टर्म है पेयर पोटेंशियल. यहाँ पे देखो मैंने लिखा है I नॉट इक्वल टू जे. ये जो I नॉट इक्वल टू जे है, ये जो सिंबल है, ये पहले तुम लोग इसको देखे हो. कैन यू रिमेंबर वेयर हैव यू सीन दिस सिंबल सिग्मा I नॉट इक्वल टू जे? याद आ रहा है? सेंसर्स में कहाँ पे? फेरोमैग्नेटिज्म बता रहा है ना. एक्सचेंज एनर्जी जब हम बोल रहे थे फेरोमैग्नेटिज्म में, मतलब क्या बेसिकली इट इज टेलिंग यू अबाउट द interaction of the nearby spins. So whenever we are writing this symbol I not equal to summation, इसका मतलब है it is taking into consideration the nearby interactions. इसलिए इसको paired potentials बोलते हैं. Okay, so this is another one. So the main thing is that ये जो local density of electron है, embedded system इसको consider करता है. ठीक है. So अच्छा, all the LAMP system, all of them are basically finding out the total energy. जितने भी systems, क्योंकि ultimate my role is to find the trajectory of the atoms. एक certain potential में atoms कैसे behave कर रहे हैं, उसका trajectory कैसा हो रहा है, एक sort of atom versus energy landscape. ठीक है, atoms और energy का landscape. For that landscape, we need to understand, we need to know how the atoms, what is the energy, and the energy, total energy is always equal to the interaction energy plus ionic energy और एक टर्म था interaction ionic and electronic energy. Sorry, electronic energy.
जो ओरिजिनल इसकी एनर्जी है वो तो एग्जिस्ट करेगा ही, प्लस इंटरेक्शन एंड आयनिक एनर्जी। तो इन द केस ऑफ EAM, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इसका जो इक्विवेलेंट है दैट कम्स आउट एज सिग्मा I, sorry, EI plus half ये जो पेयर एनर्जी है दैट इज बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन एनर्जी। ये बोले तो हम लोग क्या करते हैं पहले, द वर्क फ्लो सिमुलेशन का वर्क फ्लो क्या होता है, हम लोग पहले वी हैव अ सर्टेन आइडिया कौन से सिस्टम को हम लोग काम कर रहे हैं, किस चीज़ के ऊपर, वी शुड हैव अ सर्टेन आइडिया। अच्छा, ये दिस इज अ निकल बेस्ड सुपर अलॉय, तो इसका मैक्रो स्ट्रक्चर कैसा होता है, गामा गामा प्राइम, ये हम लोग का आइडिया है ना। बेस्ड अपॉन द सिस्टम हम लोग पोटेंशियल चूज करते हैं, विच पोटेंशियल शुड बी यूज। जैसे पहला वाला पोटेंशियल इज मेनली फॉर सुपर अलॉयज, EAM जो हम लोग डिस्कस करते हैं, ये सुपर अलॉयज बेसिकली अलॉयज एंड स्टील के लिए, बेसिकली अलॉयज मेटल्स एंड अलॉयज के लिए दिस इज वेरी इफेक्टिव। ओके, दूसरा जो सिस्टम है जहाँ पे इट इज क्लोज्ड रिलेटेड टू EAM, मॉडिफाइड EAM, इसमें द ओनली थिंग दैट वी आर इंट्रोड्यूसिंग इज बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल bond angle and bond angle introduce करना मतलब we are focusing on the direction। पहले वाला केस में direction was not a factor, यहाँ पे direction is a factor। तो इसका मतलब क्या, हम लोग उसी सिस्टम में काम करेंगे जिसमें जो बॉन्डिंग है that is directional in nature। कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड्स में डायरेक्शनल कौन सा है? हाँ, इसको सॉरी, कोवलेंट और मेटालिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, each of them is directional कोवलेंट। बट यहाँ पे D फॉर एग्जाम्पल D ऑर्बिटल्स है, ठीक है, डबल D है, तो अगर बॉन्डिंग होता है तो ऐसे होता है ना, ऐसे बॉन्डिंग होता है, या फिर ऐसे, जैसे भी होता है, या फिर ऐसे होता है। तो इफ यू आर इंट्रोड्यूसिंग एनी बॉन्ड एंगल टू द सिस्टम, इट विल बी एप्लीकेबल फॉर दोज सिस्टम्स विच आर हैविंग अ कोवलेंट बॉन्डिंग। So कोवलेंट बॉन्डिंग बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट सिरामिक्स। या फिर किसी किसी केस में सरफेस स्टडीज भी होते हैं, बिकॉज सरफेस में भी इट इज अ डायरेक्शनलिटी इन्वॉल्व, बिकॉज सरफेस इज नॉट 3 डायमेंशनली बॉन्डेड, इसका पीरियोडिसिटी इज लॉस्ट। तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं मॉडिफाइड बॉन्ड एंगल। टर्म्स ऑफ पोटेंशियल यूज किया जाता है
यहाँ पे दिस इज ऑल्सो यूज फॉर डायरेक्शनल बॉन्डिंग. बट इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन द बॉन्ड एंगल, यहाँ पे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर लोकल बॉन्ड ऑर्डर. That means, for example, Lennard-Jones potential में when two atoms are approaching to form a bond, there are two aspects. One is an attractive force, one is a repulsive force. तो इन दोनों चीज के ऊपर तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन दिस. सो अट्रैक्टिव फोर्स कितना है, रिपल्सिव फोर्स कितना है, प्लस एक अनदर टर्म यूज किया जाता है यहाँ पे, इट्स कॉल्ड कट ऑफ फंक्शन. Cut off is due to avoid any interaction. Basically इसको बोल सकते हो, it is actually the sum of different bond order potentials, BIJ, different bond order potentials. Okay, this is what does. There is no directional or there is no bond angle aspect to it. लेकिन यहाँ पे क्या है, it is considering the attractive and the repulsive forces. That is the local bond orders. और लास्ट में है, so this is also for ceramics. Ceramics में ये भी लास्ट वाला जो है ReXX FF, ReX का मतलब है रिएक्टिव फोर्स फील्ड. Stands for reactive फोर्स. ये उस सिचुएशन में काम करता है व्हेन देयर इज कंटिन्यूअस मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स. कंटिन्यूअस मेकिंग एंड ब्रेकिंग से मतलब है कि मान लो देयर इज अ बॉन्ड AB ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, ठीक है, A and B प्लस C आ जाता है. So there is a reaction taking place. तो इससे क्या होता है, A plus B minus 1. It's not that the A has gone out, but it is making and breaking of bonds. Make and break bonds, and associated with this is charge transfer plus charge. एक साथ रखिए. So इसका जो एनर्जी है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन एज वेल एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयनिक एनर्जीज.
तो तुम लोग देख सकते हो जो मैंने नोट्स तुम लोगों को शेयर किया है। एफ ई इज इक्वल टू ई बी ई ज़ीरो, अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, फिर Van der Waals, Coulomb, all sorts of energies come into the existence. So this is mainly used in the case of corrosion studies. Corrosion studies is also important क्योंकि मैंने जो तुम लोगों के साथ एक जो फाइल शेयर किया है उसमें देखोगे जो टर्बाइन ब्लेड है वो जो फेल हुआ है पीछे में दिखाया गया है, it has undergone corrosive fatigue. Corrosive fatigue failure. Yeah, right. नॉर्मल फैटिक नहीं है। नॉर्मल फैटिक क्या है? साइक्लिक लोडिंग, लोडिंग अनलोडिंग, लोडिंग अनलोडिंग। यहाँ पे द फैटिग हैज टेकन प्लेस ड्यू टू कोरोशन। तो इस सिचुएशन में मैं इन सारे पोटेंशियल्स में कौन सा पोटेंशियल यूज करूँगा? व्हाट आर द टूल्स दैट यू थिंक ये जितना भी मैंने डिस्कस किया है स्टार्टिंग फ्रॉम द कैलफेट एंड ऑल, मुझे अगर लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज, केस स्टडीज, अगर हम लोग केस स्टडीज कर रहे हैं ना, प्रोग्राम सब लिखेंगे हम लोग। तुम्हारे एक बैचपेट ने मुझको एक बहुत अच्छा चीज़ सजेस्ट किया था। वो बोला था कि विशाल आया था, वो बोला था कि सर इंस्टेड ऑफ गोइंग एक एक टॉपिक में ये वाला सिस्टम, ये वाला कंप्यूटेशन टेक्निक, वो कहते हैं कि लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। हम लोग एक प्रॉब्लम लेते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए लेट अस अंडरस्टैंड डिफरेंट टेक्निक्स दैट वी कैन अप्लाई। तो आई थिंक इट्स वेरी गुड टेक्निक, इसलिए मैंने इसी तरह से स्टार्ट किया। सो लेट अस स्टार्ट विद केस स्टडी 1। केस स्टडी 1 इज let's say failure nickel based super alloy, इसका when it fails used for turbine blades। ये जब फेल होता है तो हाउ कैन वी हैव अ कंप्यूटेशन मॉडल टू assess that failure and to prevent that failure? This is main object. So तुम्हारे पास फेलियर हुआ है, अब उसको बोलो कि हाउ विल यू प्रोसीड, कौन कौन सा टेक्निक तुम लोग यूज करोगे, क्या क्या टेक्निक तुम लोग जानते हो? अभी इंग्लिश इक्वेशन जानते हो, मॉलिक्यूलर डायनामिक्स इक्वेशन जानते हो, दूसरा है फाइनल एलिमेंट बॉन्डिंग। ये डिस्कशन उतना ज़्यादा नहीं हुआ है लेकिन बेसिकली इट कैलकुलेट्स स्ट्रेस, brain, or it's called as a microstructure evolution। इसके बारे में डिस्कस करता है। And it has 4 potentials, AN, M, AN, Tersov, ये actually molecular dynamics simulations चाहिए, basically they are applicable for labs। इसके अलावा तुम लोग और क्या जानते हो? कैलफैट जानते हो? फेस स्टेबिलिटी, और एक चीज टेक्निक जो डिस्कस हुआ है मॉन्टे कार्लो, है ना?
is based upon random sampling. ये especially कोई particular situation के लिए it's not that, but because where you have huge number of data, so suppose you need to understand the pattern किस डायरेक्शन पे जा रहा है, you take some random sampling, और तो 10 लाख samples है तुम्हारे पास, तो instead of going for 10 lakh samples, तुम लोग उसमें से मतलब 10,000 sample ले लेते हैं, उसका random sampling using random numbers. फिर थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है, ओके दिस इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, हो सकता है कि इस डायरेक्शन में जाए, सो दिस इज रैंडम सैम्पलिंग के ऊपर बेस्ड. हाँ, नाउ टेल मी, ये तुमको एनालिसिस करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एनालिसिस द स्ट्रेस, क्यों हुआ स्ट्रेस और फेलियर क्यों हुआ. सेकेंडली, हाउ टू प्रिवेंट द फेलियर. दिस इज योर टास्क. तो हाउ यू अप्रोच, ऐसा नहीं कोई सिंगल अप्रोच हो, डिफरेंट अप्रोचेस भी हो सकते हैं. टेल फर्स्ट अप्रोच क्या होगा. फेलियर, फेलियर क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है. यू नीड टू अंडरस्टैंड द फेलियर. मतलब क्रैक से हुआ है, टरबाइन ब्लेड से मामला ऐसे, देख सकते हो यहाँ पे क्रैक है, माइक्रोस्ट्रक्चर. तो बड़े माइक्रोस्ट्रक्चर तुम लोग देख रहे हो क्रैक, और इफ यू टेक हैव अ माइक्रोस्ट्रक्चर यहाँ पे, ऑब्जर्व दैट, जो मैं अभी बोल रहा था कि ग्रेन बाउंड्रीज पे कंटिन्यूअस प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हुआ. दिस फॉर एग्जाम्पल. This was suppose this is the gamma phase. This is a gamma phase. This is the gamma dash phase. Gamma dash phase was supposed to be distributed all throughout the matrix, but instead of that, we find that in some cases it has formed a continuous distribution along the grain boundary. So this has led to brittleness or leading to failure. तो उससे पहले क्या हुआ, यहाँ पे जो दिखा रहे हैं कि the reason why this has taken place for this particular case is corrosion. Corrosion is another aspect of it. So you know what is the reason, क्यों फेल हुआ, ठीक है ना. अभी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल यू डू. क्या क्या तुमको चाहिए होगा फेलियर के लिए. व्हेन अ क्रैक फेलियर मतलब देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ क्रैक, इंपैक्ट हुआ या व्हाटएवर फैटिग हुआ, जो क्रैक फॉर्मेशन हुआ है. क्रैक मतलब getting separated into two halves. तो किस कंडीशन में क्रैक होता है. when K is more than KIC, triple slab. पता नहीं क्या है. What is KIC? fracture toughness. क्या होता है ये फॉर्मूला बोलने की जरूरत नहीं, ऐसे ही बोलो. व्हाट इज KIC. ये I, व्हाट इज I है. हाँ ना. There are 3 modes by which it can fail. Mode 1, mode 2, tear, shear and bend. So this is actually I think it's bending. No, this is shear. Tear, shear and bend. ठीक है. तो KI यहाँ पे 1 है, तो बेसिकली हम लोग इसी को लेते हैं. तो it is breaking into 2 halves. So that means there are some stress concentrators. In the
माइक्रोस्ट्रक्चर, जो कि मेरा जो थियोरिटिकल KIC जितना है उससे कहीं कम है। फ्रैक्चर कब होगा भाई? K is more than KIC, है ना, तभी तो फ्रैक्चर होगा। बट इफ माई थियोरिटिकल KIC इज मच लार्जर देन माई एक्सपेरिमेंटल KIC, तो जल्दी फेल होगा। हम लोग कैलकुलेशन से हम लोगों ने सोच के रखा है कि इस लोड पे ये फेल होगा, उससे पहले नहीं फेल होगा। लेकिन ग्रिफिथ्स लॉ क्या बोलता है? दिस इज द ग्रिफिथ्स लॉ। पता है ना ये वाला 2a by s। So ग्रिफिथ्स लॉ बोलता है बिकॉज ऑफ दिस stress concentrations, even if I have calculated my KIC to be able to withstand certain load, because of this stress concentration, it fails much earlier. तो इसका मतलब मुझे ये stress concentrations को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे stress concentrations बेसिकली क्या है? ये ग्रेन बाउंड्री में जो continuous formation of precipitates है, that is the reason why it is failing. तो I need to avoid it. अच्छा, ये हाई टेम्परेचर में हो रहा है। हाई टेम्परेचर हो रहा है मतलब व्हेनेवर आई एम मेकिंग द एलॉय बन रहा है, मतलब देयर इज एन एटॉमिक डिफ्यूजन टेकिंग प्लेस। ये एप्लीकेशन से पहले ड्यूरिंग द मेकिंग देयर आर दो एस्पेक्ट है। एक, जब मैं बना रहा हूँ, हाउ मच टेम्परेचर एंड व्हाट इज द कंडीशन बिफोर while I am making that system। दूसरा है, मैं जब एंड प्रोडक्ट हो गया उसको मैं जब किसी सिचुएशन में ले जा रहा हूँ, दो अलग चीज़ है। तो ड्यूरिंग माई मेकिंग ऑफ दैट एलॉय मेरा कंडीशन ऐसा है कि द डिफ्यूजन और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एटम्स जो हो रहा है, जिससे कि सर्टेन सॉर्ट ऑफ मैक्रोस्ट्रक्चर बन रहा है, that is not conducive for that sort of high temperature, that is prone to formation of this continuous precipitates। ठीक है, तो इसीलिए मुझे पहले फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। इसीलिए आई शैल बी रिक्वायरिंग दिस वन। लोकल इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी के ऊपर बेस्ड जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर बेस्ड है। We have the nickel atoms। हम लोग कैसे डिजाइन कैसे करते हैं? We first design the nickel atoms। अभी हम लोग कॉम्बिनेशनली डिजाइन कर रहे हैं। निकल एटम्स का एक मैट्रिक्स बना लिया, FCC मैट्रिक्स। ठीक है, अभी हम लोग इसमें एडिशन कर रहे हैं एल्यूमिनियम। ठीक है, एडिशन कर रहे हैं और फिर हम लोग ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं? वी आर ऑब्जर्विंग, वी आर एक्चुअली फाइंडिंग आउट द E सिग्मा आई लोकल इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कितना है और 5IJ, ये दोनों ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा एक चीज मुझे बोलो, विल दैट बी एनफ? यहाँ पे इतना एनफ होगा? यहाँ पे कुछ ऑक्साइड फॉर्मेशन हो रहा है या एनीथिंग दैट कैन कुछ हो रहा है क्या? या विच इज समथिंग विच इज डायरेक्शनल इन नेचर? ये जो मैंने जो लिखा है Ni3AT, basically it's an intermetallic। इंटरमीडिएट का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो ये हम लोग इसको अलाउ तो नहीं बोलते करना, इसको अलाउ तो यह क्या बात है? इसको अलाउ बोल सकते हैं क्या? दो चीज, मेटल नहीं है, इसको ध्यान से देखो, इट इज समथिंग कॉल्ड मेटल। जानते हो क्या है? समथिंग कॉल्ड अलाउ। दोनों में डिफरेंस क्या है?
metal is formed of a single A. यहाँ हम लोग दे रहे हैं मान लो B, तो इसका जो लैटिस है either it is substituting A or diffusing A. There are two possibilities. Ceramic या डाइलेक्ट्रिक अगर मैं मटेरियल के बारे में देखूँ, इसमें क्या है? There is formation of bonding, covalent and ionic bonds. So it is a mixture of covalent and ionic. तो alloy formation में alloy में तो कोई covalent and ionic bond या ceramic formation नहीं है. alloy में simply जाके replace कर देते हैं. And intermetallics is actually in between an alloy and a ceramic. So there is some sort of formation of compounds at the interface between the two metals. इसको हम लोग intermetallics बोलते हैं. हम लोग जब भी किसी ब्रेजिंग तुम लोग का हुआ है, फाउंड्री ब्रेजिंग, मेटल जॉइनिंग नहीं हुआ है, तो वहाँ पर तुम लोग देखोगे मान लो पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में या फिर इलेक्ट्रॉनिक पैकेजिंग में जब हम दो मेटल का से जॉइन करते हैं ना, तो एट द इंटरफेस देयर आर डिफरेंट इंटरमेटालिक्स. तो हम लोग उस इंटरमेटालिक्स कंपाउंड्स को अलाउ नहीं करेंगे. दे आर बेसिकली कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग ऑफ टू मेटल्स. तो यहाँ पे सम इंटरमेटालिक्स. तो जैसे हम लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस आ जाता है यहाँ पे, सो इन दैट केस वी नीड टू फोकस ऑन दिस structure and to some aspect because there is making and breaking of bonds. Because यहाँ पे the local bond order बहुत बड़ा impact करता है. So it is continuously making and breaking of bonds. ठीक है. अच्छा, उसके बाद the next state is, ये तो एटॉमिक बॉन्डिंग्स वगैरह हो गया. नेक्स्ट स्टेट इज वी नीड टू आइडेंटिफाई द फेज. कौन सा फेज बन रहा है, उसके लिए वी नीड टू गो इनटू दिस कैल्फाइड. और अच्छा, जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, एटम्स आर डिफ्यूजिंग. फॉर दैट वी रिक्वायर द Monte. We can use Monte Carlo technique. It's not mandatory, but we can take the help of Monte Carlo technique. But after everything has been formed, then मेरा जब end product जब बन जाता है, तब मैं instead of उसका प्रोडक्ट बना के उसको फिजिकली टेस्ट करने के बजाय मैं उसको कंप्यूटेशनली टेस्ट करता हूँ, उसमें स्ट्रेस जनरेशन करता हूँ. फॉर दैट आई शैल बी रिक्वायरिंग फाइनाइट एलिमेंट. उस दिन पीएचडी वाले में तुम लोग थे, पीएचडी वाले जो प्रेजेंटेशन हो रहा था, तो वहाँ पे ऐसे दिखा रहता है ना कि कलरफुल डायग्राम दिखा रहे थे. सो दैट इज द FEM. वहाँ पे दिखाया गया था कि इंडेंटेशन करके एट द इंटरफेस कैसा तुम्हारा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. जैसे उसके केस में बोल रहा हूँ, ये मान लो तुम्हारा एक सैम्पल है, तुमने यहाँ पे इंडेंटेशन तुम लोगों ने किया होगा माइक्रो हार्टिस या व्हाटएवर. तो वो जब इंडेंट करते हैं तो दिस इज द एरिया वेयर द मैक्सिमम स्ट्रेस इज जनरेटेड. तो ये कलर डिस्ट्रीब्यूशन से इसको दिखा रहा था. तो दिस इज, ये मान लो रेड, दिस इज रेड, ठीक है, ये रेड हो गया. उसके बाद मान लो जो भी येलो हो गया, उसके बाद ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया. तो ये यहाँ पे यू हैव द डिफरेंट कलर कोड्स करस्पॉन्डिंग टू दैट यू हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्ट्रेस. बॉन्ड बेस्ड स्ट्रेस बोलते हैं इसको. तो इसको देखकर तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि व्हाट इज माय
स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है. सो इट विल हेल्प मी प्रिडिक्ट फेलियर. सो बेसिकली क्या किया हम लोगों ने एलॉय फॉर्मेशन किया. हम लोगों ने एलॉय फॉर्मेशन के प्रोसेस को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश की बाय यूजिंग डिफरेंट पोटेंशियल्स. उसके बाद व्हेन आवर एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन जब हो गया, देन वी यूज दैट थिंग एंड प्रोडक्ट कंप्यूटेशनली. We took it in a real situation and we observed the impact of stress, impact of force. So इसमें सारे कंप्यूटेशनल टेक्निक्स का यूज. ठीक है, तो इसको हम लोग धीरे धीरे इसमें हम लोग इसी को पहला केस स्टडी हम लोग करेंगे. तो मैं बोलूँगा कि तुम लोग आज ये जो लैम्प्स है पीसी कल सब लोग लेके आना, लैपटॉप या पीसी व्हाटएवर, जिसमें लैम्प्स डाउनलोड होता है. हाँ, यहाँ से लोग डाउनलोड कर लेना कि इसके बाद बोर्ड में क्लास करने का कोई मतलब नहीं. इसके बाद कल से हम लोग नीचे पीसी मेरे पास नीचे होगा, मैं भी आज डाउनलोड करके रखता हूँ. कल वाला क्लास तुम लोग नीचे आ जाएगा. ओके.